اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے۔ درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا کہ وہ بندے جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، جو اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، کس کو کھلاتے ہیں؟ فرمایا وہ مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں اور اسیر کو کھلاتے ہیں، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بعض بچے ابھی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، ایسے بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔ وہ نابالغ بچہ جس کا والد انتقال کر جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ جب بالغ ہو جائے تو اس پر پھر اس چیز کا اطلاق نہیں ہوتا، اگرچہ اہل لغت تو یہی فرماتے ہیں کہ ماں باپ دونوں کے جانے سے بچہ یتیم ہوتا ہے۔ یہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان کے کثیر حقوق قرآن و سنت میں بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خاص توجہ ہماری کرائی ان کے حقوق کے تعلق سے۔ والد کی موجودگی انسان کے لیے ایک بہت بڑا سہارا رکھتی ہے، اور بالخصوص اس موقع پر جب آدمی چھوٹا ہوتا ہے، بچے کمزور ہوتے ہیں، انہیں گھنی چھاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، گھنی چھاؤں کی، جس میں وہ اپنا وقت صحیح طریقے سے گزار سکیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کا والد انتقال کر جاتا ہے تو وقتی طور پر تو بہت ساری اس کے لیے آسانیاں کی جاتی ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو وقتی طور پر آپ کے دست شفقت پھیرتے ہیں، وقتی طور پر سہارا دیتے ہیں، کسی وقت کو تھوڑی بہت مدد بھی کر جاتے ہیں، لیکن مستقل بنیادوں پر ان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ان کو مستقل ضرورت ہوتی ہے نگرانی کی، مستقل ضرورت ہوتی ہے تربیت کی، مستقل ضرورت ہوتی ہے دھوپ چھاؤں سے بچانے کی۔ وقتی چونکہ جذبات ہوتے ہیں، بھائی چلا گیا اس کے بچوں کے ساتھ تھوڑا بہت، پھر آہستہ آہستہ لوگ کہانیاں بنانے لگتے ہیں کہ ان کا ابا اتنے پیسے بھی تو چھوڑ گیا نا، اتنی جائیداد بھی تو ان کے پاس ہے نا، اور اب یہ بڑے بھی تو ہو گئے ہیں نا، مہنگے اسکول میں پڑھنا ضروری تو نہیں ہے نا، تو پھر رویوں میں سختی آتی جاتی ہے۔ اب جو بچے زیادہ کمزور ہوں، فیملی میں بھی ایسا کوئی نہ ہو، تو ہمارے ہاں ان کے لیے یتیم خانے بنتے ہیں۔ بڑا اچھا لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے ملک میں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بڑا نرم دل دیا ہے، لوگ بڑا خیال رکھتے ہیں، مدارس اسلامیہ بڑی ساری خدمت کرتے ہیں اس تعلق سے، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ویلفیئر ادارے قائم کیے ہیں۔ لیکن میں اپنی ایک چھوٹی سی رائے رکھتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض ادارے، سب نہیں، بعض ادارے اس طرح کرتے ہیں کہ جو ڈونر ہوتے ہیں، جنہوں نے فنڈ دینا ہوتا ہے، ان کو لا کے نہ تو دکھاتے ہیں یہ جی اتنے سارے بچے ہیں جی ہمارے پاس، غریب مسکین لاچار۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی مال تو نہیں نا جو دکھا کے آپ نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ چلے آپ نے اچھی نیت کے ساتھ ہی یہ کام کیا، آپ کا خیال تھا کہ ان بچوں کے لیے کوئی اور اسباب جمع ہو جائیں، کچھ ان کو مزید کچھ ملے گا، لیکن یہ کہ آپ نے اچھی اور خیر کے جذبے کے ساتھ بھی یہ کام کیا، لیکن آپ کو چونکہ تربیت کرنی تھی ان بچوں کی۔ اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہمیں تو دکھایا جا رہا ہے، اور جس طرح اپنا مال صاف ستھرا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس طرح ہمیں تو دکھا کے پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، تو ایک ان کا ذہن بن جاتا ہے، وہ ساری زندگی اس رویے میں آ جاتے ہیں کہ میں نے شاید مانگ کے ہی کھانا ہے، مجھے شاید اسی طرح ہاتھ ہی پھیلانا ہے۔ وہ لوگوں کے ہاتھوں کو دیکھنے کے آہستہ آہستہ عادی ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے اندر خاص صلاحیت ہوتی بھی ہے تو وہ صلاحیت ان کی دم توڑ جاتی ہے، وہ آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، سہارے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے بعض مدارس میں بھی یہ کام ہوتا ہے،
सेठ साहब, नवाब साहब, मालदार आदमी वो आया है, तो वो अब वो जा रहा है क्लासों में, एक एक क्लास उसको दिखाई जा रही है, इतने बच्चे हैं, ये करते हैं, ठीक है आपके जज्बात अच्छे ही होंगे, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि बच्चों के दिलों पे जो गुजरेगी उसका भी तो हमें ख्याल रखना है ना, उस पर भी तो हमें तवज्जो करनी है ना। तो इसलिए ये कि ये माहौल नहीं बनाए लोगों के ज़हनों में, उनको मुस्तकिल किफ़ालत। आप कुरान और सुन्नत को आप पढ़े ना, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना व काफ़िलुल यतीम, फरमाया मैं और यतीम की किफ़ालत करने वाला, वक्ती तौर पर 10,000 दे के वापस जाने वाला नहीं, किफ़ालत करने वाला, मुस्तकिल बुनियादों पर उसका ख्याल रखने वाला, उसकी परवरिश करने वाला, उसके आगे बढ़ने में उसकी मदद करने वाला। फरमाया मैं और यतीम की परवरिश करने वाला क़यामत के दिन इस तरह होंगे जिस तरह मेरी ये 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं। हुजूर फरमाते इस तरह क़यामत के दिन मैं और यतीम को पालने वाला हूं। तो अच्छे जज्बों के साथ, खूबसूरत रवैयों के साथ, अल्लाह की रिजा को पेश नजर रखते हो इन बच्चों को, और ये 1 2 4 लोगों की तादाद नहीं, ये ढेर सारे बच्चे होते हैं, ढेर सारे। मेरी जाती ये राय है कि उन बच्चों से बार बार पूछे भी ना आपको जरूरत क्या है, उनको बार बार एहसास ना दिलाएं कि हम आपका ख्याल रखते हैं, ये भी ना करें। आप बाई द वे भी तो सारा कुछ कर सकते हैं, पीछे रह के भी तो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं न कभी पलट के देखा ही नहीं, कौन उनको पाल रहा है, लेकिन कोई है, कोई बैठा हुआ दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं समुंदर उछाल देता है। किफालत करें, निगरानी करें, उनका मुस्तकिल बुनियादों पर ख्याल रखें, उनके लिए असबाब फराहम करें। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें बताऊं घरों में सबसे बेहतरीन घर कौन सा होता है? ओ मेरे भाइयों, वो कितना को बेहतरीन घर है जिसे मदीने वाले रसूल ने बेहतरीन कह दिया है। फरमाया तुम्हें बताऊं ना घरों में बेहतरीन घर कौन सा है? हम समझते हैं टाइलें अच्छी हों, कमरे हवादार हों, और किचन जो है वो अनवाउ इकसाम के खानों से भरा हुआ हो, सेन अच्छा हो, और जनाब हर चीज की सहूलियात घर में हो, अमन हो, सुकून हो। नहीं, हुजूर फरमाते हैं मुझसे पूछो ना बेहतरीन घर कौन सा है। तो या रसूलल्लाह बताइए, सियासता में हदीस है, करीम रसूल फरमाने लगे घरों में बेहतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम रहता हो और उसके साथ सलूक अच्छा किया जाता हो, अच्छा सलूक किया जाता हो। यतीम को रखा जाए, फिर उसकी पूरी निगरानी की जाए, उसे पूरा प्यार दिया जाए, उसे पूरी मोहब्बत दी जाए, यतीम रहता हो और उसका ख्याल भी रखा जाता हो। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तुम्हें बताऊं ना कि घरों में बदतरीन घर कौन सा होता है? बदतरीन घर कौन सा है? हुजूर बताइए। फरमाया जिसमें कोई यतीम रहता और उसके साथ सलूक ना सही किया जाता, उसको तकलीफ दी जाती हो, वो करब में हो, वो तकलीफ में हो, वो अजियत में हो। रखने वालों ने रख तो लिया है, लेकिन उनको पता ही कोई नहीं है कि इनके साथ हमने रवैया किस तरह का रखना था। ये एक अल्लाह की कुदरत है, उसकी हिकमत है। चले जाते हैं बाज़-औक़ात बड़े। मैंने जो शुरू में आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाते हैं अलम यजिद का यतीमन फ़ावा, महबूब हमने आपको यतीम पाया, फिर अपने जवारे रहमत में वसी जगह दी, फिर हमने आपको गनी कर दिया, फिर हमने आपको अपने कुर्ब का रास्ता अता किया। अल्लाह ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को दुर्रे यतीम पैदा फरमाया। ये यतीमों के ताल्लुक से एक अजीम शान इन लोगों को देनी थी, तो अल्लाह ने अपने हबीब को भी दुर्रे यतीम पैदा कर दिया। ये एक खास किस्म का करब होता है। जाहिर है जिस आदमी ने जो चीज़ चखी हुई होती है वही उसके जायके से आगाह होता है, दूसरा दूर खड़ा उसे आगाह नहीं होता। जो चख लेता है, जो पानी में उतर जाता है, वो उसकी गहराई भी जानता है और ठंडा कितना ये भी समझता है। जिन लोगों ने ये दौर गुजारा होता है उनको इसका पता होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वक्त बिताया था, हुजूर ने ये देखा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तकलीफ से, इसकी आजमाइश से, इसके मद्दोजज़र से पूरी तरह आगाह थे। इसलिए हुजूर ने गिन गिन के यतीमों के हुकूक बयान किए। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये निज़ाम देखा है, पहले 2 हफ्ते लोगों की नज़रों में बड़ा प्यार, अगले 2 हफ्ते उसमें थोड़ी सी कमी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कहना कि चलो कोई तलीमें हासिल करना ज़रूरी तो नहीं ना, चलो यहाँ पढ़ना ज़रूरी तो नहीं ना, चले बंदे को खर्चे भी तो कम। फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना वो पुरानी होती है, उसमें कमज़ोरी आना, फिर लोगों के लबो लहजे का तब्दील होना, फिर बाज़-औक़ात किसी शख्स का आके कोई बात पूछना तो उसके सवालों में चुभन, उसके लबो लहजे के अंदर घुटन कि कितने बजे बाहर जाते हो, कब वापस आते हो। अब
शाम को कितने बजे जाते हो? अब्बा भी ये बातें पूछते हैं, वो भी ये काम करते हैं। लेकिन उस रवैये के अंदर जो चाशनी होती है वो और होती है, उसमें जो दर्द होता है वो। और किसी का ये पूछना और फिर उस अंदाज से पूछना कि महसूस हो कि लबो लहजे से तंज छलक रहा है और बातों से जो है शरीनी की बजाय लहू टपक रहा है, और आप तेजाब का काम कर रहे हैं ये सवाल जवाब करके। ये कमजोरियां, ये अंदाज, और यहां तक कि बेटियों के रिश्ते देखने वालों का आना तो उनका ये पूछना कि भाइयों का रवैया कैसा है। अब्बा के होते लोग ये सवाल नहीं पूछते, वालिद के जाने के बाद पूछते हैं आपके भाइयों का रवैया आपके साथ ठीक है। यानी माना यह है कि वो कुछ देंगे कि नहीं देंगे, वो कुछ जहेज बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ये सारी चीजें, इस कर्ब से वो बच्चे गुजरते हैं। और फिर वो बड़े करीबी लोगों को भी अपना करीबी समझना छोड़ जाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो समझते हैं हमें अपने दामन में ही अपने आंसू छुपा लेने चाहिए, किसी को नजर ना आए। वो महसूस करते हैं कि हमें खुद से ही बस सिमट जाना चाहिए, किसी तक हमारी कोई चीज पहुंचे ना। आहिस्ता आहिस्ता लोग चीजों को छुपाने लगते हैं। और ये पूछना कि रोटी खाई है कि नहीं खाई, तो इस तरह पूछना जैसे वो खैरात लेके खड़ा है दरवाजे पे। आपने खिलानी होती तो खिला दी होती। आपने गर्मियों के कपड़े ले लिए हैं कि नहीं ले लिए, तो उसका रंग इस तरह का है कि जिस तरह किसी को इस तरह पूछा जा रहा है कि जैसे बड़ा भिखारी है। ये सारी चीजें हम इस अंदाज में करते हैं कि वो जो खूबसूरत, मैं कह चुका हूं कि फिर अगर किसी इदारे में वो बच्चे हैं तो वहां उनको दिखाया जाता है कि इतने बच्चे हैं तो हमें फंड चाहिए। आप अच्छी नीयत से कर रहे होंगे साहब, लेकिन आप उस कॉम्पल को भी तो देखें ना कि उसने खिलना है, उसने फूल बनना है, उसने किस तरह छांव लोगों को देनी है जब वो खुद मुरझा जाएगा। फिर ये लोगों को, ऐसे बच्चों को मैंने आम लोगों से नफरत करते देखा, पीछे हटते देखा। लोगों के लिए उनके दिलों के अंदर अच्छे जज्बात न रहे। उन्होंने महसूस किया कि ये हमारे साथ ताउन करने नहीं आए, ये हमारी इज्जत को मजरू करने आए, ये शफकत करने नहीं आए, ये तो खैरात देने आए। सुनो मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या है यतीम के ताल्लुक से। हज़रत बशीर बिन अकरबा रज़ियल्लाहु ताला मजमू ज़वाइद मेरे सामने पड़ी है। फरमाते ओहद में मेरे वालिद शहीद हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना मुझे अपने घोड़े के पीछे अपने साथ बिठा लिया घोड़े पे, और मैं सरवरे कायनात अलैहि सलातो सलाम के साथ घोड़े पे बैठा हूं। तो हुजूर मुझसे पूछते हैं तुम्हारे वालिद चले गए। मैं रो पड़ा। मैंने अर्ज़ की हुजूर अब निज़ाम कैसे चलेगा। आप यकीन करें छाँव का पता तब भी चलता है कि जब धूप आती है और उसकी कदर का एहसास होता है, महसूस होता है। जब कोई घर का बड़ा रुखसत हो जाता है तो यूं लगता है कि सारी छतें कमरों की भी गिर गई हैं, सेन की भी गिर गई हैं। अब यकदम धूप आई है, फिर उसका एहसास महसूस होता है। वालिद के, दादा के, बूढ़ों के घर में होते हुए तो बड़े सारे वैसे ही मसले नहीं होते, बहुत सारे लोग वैसे झिझकते हैं, सामने ही नहीं आते। तो हजरत बशीर बिन अकरबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैंने कहा हुजूर मेरे अब्बा जी चले गए। अब मैं अपने आप को बड़ी तकलीफ में महसूस करता हूँ। कुर्बान जाए, हुजूर ने ये नहीं फरमाया मैं तेरा ख्याल रखूंगा, ये नहीं फरमाया फिक्र ना करना। हमारे जुमले क्या होते हैं, कोई हुक्म हुआ तो बताना, कोई काम हुआ तो कहना, कोई जरूरत हुई तो फौरन फोन करना। ये नहीं फरमाया। कुर्बान जाए, क्या अदाएं हैं, क्या रंग है, क्या देने का अंदाज है, और किस तरह बरखा बरसती है रहमत लिल आलमीन महबूब की। हुजूर फरमाने लगे बशीर क्या तू पसंद नहीं करता कि आयशा तेरी माम बन जाए और मोहम्मद अरबी तेरे बाप बन जाए? पसंद करते हो? हजरत बशीर बिन अकरबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बैठा तो घोड़े पे था, पर मुझे यूं लगा कि सारी ही दुनिया गोया मेरी झोली में आ गई, सारा कुछ ही यहाँ। इतनी बड़ी बात हुजूर ने कर दी, इतने बड़े जुमले कह दिए। मैं तू पसंद नहीं करता, तुझे अच्छा नहीं लगता कि आयशा तेरी माँ बन जाए और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे वालिद बन जाए, तो पसंद नहीं। फरमाते बस खत्म हो गई बात। फिर तो हमने धूप देखी कभी नहीं, फिर तो गुर्बत गोया आई कभी नहीं, फिर तो हमने देखा ही नहीं मद्दो जज़र क्या होता है। वो तो दुनिया की बात करते हैं ना। मुझे तो लगता है कि जिनके लिए ये लफ्ज आ गए ना, उनकी तो कयामत की भी सारी मुश्किलें हल हो गई, कि तो आखिरत के भी सारे मामला तय हो गए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक हमारी खास तवज्जो, और ये हमारा अपना नफा है। एक बच्चा आ गया, यतीम बच्चा, उसने आके अर्ज की हुजूर 3 घर में अफराद हैं, मैं, मेरी बहन और मेरी बेवा माँ। वालिद हुजूर चले गए और आज ना 3 दिन हो गए रोटी कोई नहीं खाई। मैं उस मंजर को भी जानता हूँ कि जब यतीम घर में इकट्ठे बैठे होते हैं और पता होता है उनको कि हमारी अम्मा के पास आज पैसे कोई नहीं और घर में रोटी भी कोई नहीं, तो फिर उनको भूख ही नहीं लगती। हाँ नहीं लगती।
अम्मा पूछती है पुत्र रोटी खानी है? नहीं नहीं मेरी तो, मैं तो सवेरे जो खाया था वो हजम ही नहीं हुआ। अम्मा जी शाही कोई नहीं। ये पर्दे इस तरह करके बचाए जाते हैं। एक दूसरे को तसल्लियाँ देना, एक दूसरे से प्यार का बढ़ जाना, एक दूसरे के लिए जज्बात और तरह के बन जाना हिकमत इलाही के तकाजे होते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेवा माँ है, यतीम बहन है, 3 दिन से खाया कुछ नहीं, कुर्बान जाए। वो घर जहाँ से कायनात खाती है सारी। हुजूर ने फरमाया बिलाल जा ना, जाके सारी अज़वाज मुतहरात से पूछ घर में क्या है। हज़रत बिलाल कहते हैं मैं सारे घर ही पूछ आया, टटोल आया, टोटल 21 खजूरें निकली। ये 2 जहां के शाह हैं और पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं, इनके खाली हाथ में हुजूर के सारे घर को मैं ढूंढ 21 खजूरें निकली तो ला के मैंने पेश कर दी, तो हुजूर ने डायरेक्ट उसको नहीं दी, नबी पाक ने अपने हाथ पे रख ली। और कहते हैं फिर हुजूर ने ना अपना मुंह मुबारक करीब किया खजूरों के। सहाबा खुद फरमाते हैं कि ये जो हुजूर ने मुंह मुबारक करीब किया है ना, तो नबी पाक बरकत की दुआ कर रहे थे। 21 खजूरों पे बरकत की दुआ हुई। हुजूर ने उस बच्चे को बुलाया, थपकी दी, फरमाया ले जा 7 तेरी बहन की। इन्हें मामूली ना समझना हो तो हज़रत बिलाल कहते हैं हुजूर 3 भी दे देना कभी तो 30-30 साल खत्म ही नहीं होती। तो 30-30 साल गुजर जाते हैं, निकालते रहो, खाते रहो, खत्म ही नहीं होती। हुजूर ने फरमाया 7 तेरी बहन की, 7 तेरी वालदा की, और 7 हुजूर ने और भी तलकीन फरमाई। फरमाया एक सवेरे खाया करना, एक शाम को खाया करना, ये ले जा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी कहते हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चा लेके जब बाहर निकला तो हजरत सैयदना मुआज़ इब्न जबल दौड़ के गए और जाके बच्चे के सर पे शफकत से हाथ फेरा। का फिक्र न करना, रब करीम तुझे बेहतरीन सरपरस्त अता करेगा, पुत्र परेशान ना होना, अल्लाह तेरी मदद करेगा। सिर्फ हौसला दिया, सर पे दस्ते शफकत फेरा, बच्चा चला गया। तो हुजूर ने फरमाया मुआज़ इधर आओ ना जरा। या रसूलल्लाह हुक्म हो। फरमाया किस चीज ने तुम्हें उठाया बच्चे के सर पे हाथ रखने के लिए? किसने तुम्हें कहा? किस चीज ने तुम्हें उठाया जो तुम बच्चे तक पहुंच गए? अर्ज की या रसूलल्लाह, वो जो मेरे दिल में अल्लाह ने यतीम के लिए रहमत रखी है ना, उसने मुझे उठाया था और मैंने जाके उसके सर पे दस्ते शफकत फेरा। तो हुजूर फरमाने लगे सुन, फिर जो किसी यतीम के सर पे खाली हाथ भी फेर दे, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे ना, रब उतनी खताएं माफ करेगा, उतनी नेकियां देगा, उतने दर्जे उसके बुलंद कर देगा। खाली दस्ते शफकत ही फेर दे, देना दिलाना तो बात की बात है, उसका ख्याल रखना। तो ये जो हमारे मदारस है ना, इनमें अक्सर बच्चे गरीब होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तगड़े घरों के भी होते हैं, मालदार घरों के भी होते हैं। इसमें अगर कोई ऐसा बच्चा आ भी जाता है ना जो यतीम है, कमजोर है, तो वो अपने आप को महसूस नहीं करता कमजोर, क्योंकि वो ये नहीं समझता कि मैं यतीम खाने में आया हूँ। उसके ज़हन में माइंड सेट ये होता है कि मैं मदरसे में आया हूँ और मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। और चूंकि वो कुछ वज़ादार बच्चे, मालदार बच्चों के साथ वक्त गुजारता है, उसी दस्तरखान पे बैठ के खाता है, उसी क्लास में सबके साथ बैठ के पढ़ता है, तो उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होने की बजाय ताकत पकड़ती। वो बराबरी की सतह पे जब आता है तो उसे महसूस होता है कि मुझे इज्जत दी जा रही। इसलिए मदारस इस्लामिया मेरी नजर सबसे मजबूत जगह है जहां मसाकीन की, यतीमों की, गरीबों की सही मानों में किफालत भी होती है, तालीम भी होती है, इज्जत भी होती है, तरबियत भी होती है। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम बड़े इन्हिमाक के साथ, बड़े तवज्जो के साथ। अच्छा, एक काम और होता है हमारे यहाँ, वो क्या है? अगर कोई यतीम माल छोड़ गया ना उसका बाप, तो फिर तो बारे नहीं आ रहे हैं उसके, फिर तो अल्लाह खैर करे कि बहुत सारे मिल जाएंगे किफालत करने वाले, बहुत सारे मिलेंगे ध्यान रखने वाले, बड़े सारे मिलेंगे तवज्जो देने वाले। कुरान मजीद ने फरमा दिया है कि जो यतीम का माल खाता है वो समझ ले कि मैं माल नहीं खा रहा, मैं आग खा रहा हूँ, आग खा रहा हूँ, आग। सूरह निसा देखिए। हमारे यहाँ अगर तो वो माल छोड़ गया है तो फिर तो बहुत सारे रिश्तेदार मुस्तकिल उसके मोहल्ले में मकान लेने को तैयार हो जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। फिर तो बड़े सारे ऐसे भी रिश्तेदार बन जाते हैं जिनको वालिद की मौजूदगी में कभी ज़ियारत का मौका भी नहीं मिला था। ये माल जो यतीम का है इसकी तो ज़्यादा हिफाजत करनी थी। हम कई दफ़ा मसला बताते हैं, लोग फतवाबाजी शुरू कर देते हैं। मुझे बुलाया गया कि एक साहब का इंतकाल हो गया, तो उनका ख़त्म शरीफ है, तो बच्चे उनके नाबालिग हैं। तो मैंने कहा कि आप इस तरह करें, उनके माल में से ज़्यादा पैसे ना सर्फ करें। नहीं जी नहीं, बड़े पैसे कमाए हैं जी उसने, सारी ज़िंदगी बाहर निकाली, या तो लाखों करोड़ों कमाए हैं, तो छोटा गोश्त पकाएंगे, बकरे का गोश्त पकाएंगे और हम उनका ख़त्म शरीफ दिलाएंगे। तो मैंने कहा साहब आप रिश्तेदार हैं, उनके बच्चों के माल की हिफाजत करें। ख़त्म शरीफ तो उसमें गोश्त ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं, उसमें तो दर्द से दुआ करना ज़रूरी है, उसमें तो तिलावत कुरान पाक के साले सवाब में ज़रूरी है, जिक्र अज़कार ज़रूरी है। लेकिन क्या किया जाता है कि बेदरेग
माल उनका अगर हो तो। एक हदीस पाक है बुखारी मुस्लिम में, बड़े गौर से सुनिएगा, और इसके अंदर जितने पहलू हैं उन पर पूरी तवज्जो दीजिएगा कि कहीं हम इधर आ तो नहीं गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हमारे लिए सबसे बड़े हकीम है, सबसे ज्यादा हिकमत हुजूर ने हमें बतलाई है कि इस रास्ते चलोगे तो बचोगे, इस रास्ते जाओगे तो हलाक हो जाओगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम में फरमाया, 7 हलाक करने वाली चीजों से बचना, अगर इनमें तुम चले गए तो हलाक हो जाओगे। 7 चीजें हैं जो तुम्हें हलाक कर देंगी, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, हलाकत का सफर है ये। 7 चीजों से बचो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन सी? तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के साथ शरीक ना करना, हलाक हो जाओगे। दूसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जादू ना करना, हलाक हो जाओगे, हलाक। और यार जिसे हुजूर फरमा रहे हैं हलाक हो जाएगा, वो बचेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे नंबर पर फरमाया, जिस शख्स के कत्ल करने को अल्लाह ने हराम करार दिया है उसे कत्ल ना करना, हलाक हो जाओगे। चौथे नंबर पर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूद ना कभी भी खाना, हलाक हो जाओगे, हलाक। बड़ी बड़ी दलीलें दी बैंक वालों ने, बड़ा समझाया तो आदि साहब मान गए, मुहतरम मान गए, कहने लगे नहीं जी नहीं, वो कारोबार में लगाते हैं। बड़े भोले भाले हैं, पता सारा है। और देखो सब कामों के बावजूद मुस्तकिल बैंकों में पैसे उस अकाउंट में रखे हुए हैं जहां से मुस्तकिल सूद आता है। हुजूर ने फरमाया, न करना ये काम। तू कहता है मैं सूद पे पैसे लेके कारोबार चमकाऊंगा, तेरे नबी पाक ने तो फरमाया तू हलाक हो जाएगा। तू कहता है मैं मेल लगाऊंगा, हुजूर ने तो फरमाया हलाकत है। तू कहता है मैं बड़ा कुछ कर जाऊंगा तो हलाकत है। अच्छी तरह समझ ले, असल माल भी जाया हो जाता है उस बंदे का जो सूद का माल मिला लेता है, असल बरकत भी उड़ जाती। और मेरे नबी एक पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वें नंबर पे फरमाया, यतीम का माल ना खाना, हलाक हो जाओगे, ना खाना इनका माल। ये करोड़ों हो, अरबों हो या 10 रुपए हो, यतीम का पैसा ना खा जाना, हलाक हो जाओगे, हलाकत तुम्हें आ लेगी। और फिर 6ठे नंबर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुफर से जहाद हो रहा हो तो कभी पीठ फेर के भागना ना, हलाक हो जाओगे। और 7वें नंबर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेकसूर और बेगुनाह औरत पर तोहमत न लगाना, बिला वजह बहू के खाते ना कुछ डाल देना, बिला वजह भाभी और बीवी और किसी भी खातून पर कोई इल्जाम बेकसूर औरत पर बहतान न लगाना। मार मार के एक शख्स ने बेहाल कर दिया बीबी को, और बाद में पता चला कि जी मुझे शक है तवीज़ कराती है। क्या आपकी सोच है? मुसलमान अल्लाह को मानने वाला, और इस बातों पर इल्जाम लगाएगा तवीज़ करा के लाती। बेकसूर औरत पर बहतान, एक तो बात है उसे मारना, और एक ये है कि कोई तकलीफ देना, और एक खाली इतनी बात की कि बहतान भी ना लगाना, उस पर इल्जाम ना लगाना। यानी तुमने सिर्फ बेकसूर औरत पर इल्जाम ही लगाया तो हुजूर फरमाते हैं हलाक हो जाओ। ये हलाकत वाला काम है। लेकिन हम बगैर सोचे समझे कह देते हैं उसने कहा है, उसने किया है, ये करती है, ये काम नहीं करे। ये 7 वो चीजें हैं जो हलाक कर देंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं ना जन्नत का दरवाज़ा खोलूंगा तो एक औरत को ना मैं सबकत ले जाते हुए देखूंगा, यानी वो जल्दी से जन्नत में दाखिल हो रही। या बाज़ शारहीन कहते हैं कि हुजूर दाखिल होते ही सबसे पहले उसका चेहरा देखेंगे। हुजूर फरमाएंगे तू पहले ही आ गई, बीबी जन्नत में, हुजूर ने दरवाज़ा खोला तो जल्दी से नजर आई, तू पहले आ गई। सब ने लिखा है कि इस औरत की शान ये है कि सबसे पहले जन्नत में गई। मैंने हदीस पढ़ी तो मैंने नीचे हाशिए में लिखा, मैंने कहा मेरा ख्याल ये है कि इसकी ज़्यादा शान ये है कि जन्नत में इसकी सबसे पहली मुलाकात मदीने वाले महबूब से हो गई। ये देखो कितनी बड़ी शान। हुजूर फरमाने लगे तू कैसे पहले ही आ गई, कौन है तू? तो वो कहने लगी, हुजूर मैं बेवा हूँ, मेरे बच्चे यतीम थे, मैंने उनकी खातर ना बैठी रही, मैंने निकाह नहीं किया, मैंने उन यतीमों की परवरिश की, बेवा बन के जिंदगी गुजार दी, उन यतीमों के लिए बैठी रही। इसको जायज़ है, ये कर सकती थी, लेकिन इसने सोचा कि मैं इनकी निगहबानी यतीमों के लिए बैठी रही। आज शान ये है कि मदीने वाले के लिए जब दरवाज़ा खुला है तो इस बीबी को भी रब करीम ने फौरन ही जन्नत अता फरमा दी। ये सबसे पहले गई। मैंने देखी हैं ऐसी औरतें 23 साल में बेवा हुई पर उम्र बच्चों के नाम कर दी। उसे पता था कि कल को जब ये बड़े होंगे तो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि अम्मा सोई है कि जाग रही है, इनका आना जाना अलग से हो जाएगा, इनके ताल्लुकात अपने हो जाएंगे। पर ये बैठी रही, ये बैठी रही, इसने बच्चों को वक्त दिया। तो बच्चे तो क्या इसको सिला देते थे, रब ने ये सिला दिया है कि सबसे पहले इसे जन्नत में दाखिला अता फरमाया।
अबू दाऊद शरीफ में मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ात थे हज़रत जाफ़र तैयार, मौला अली शेर खुदा के भाई थे, जंग मौता में शहीद हो गए। वहाँ से कोई ख़बर लेके नहीं आया, लेकिन रब ख़बरें देता है ना अपने हबीब को। अल्लाह गैब के ख़जानों की कुंजियाँ देता है अपने महबूब को। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना उनके घर गए, उनकी ज़ौजा का नाम अस्मा बिनते उमैस था। हुजूर ने फरमाया, अस्मा मेरे भतीजों को मेरे पास लाओ, मोहम्मद बिन जाफ़र और अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हु। बच्चे करीब आए, हुजूर को पता है इनके वालिद शहीद हो गए। नबी पाक ने अपनी नाक मुबारक उनके रुखसारों पे रखे, फिर हुजूर ने उनका माथा चूमा, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाया, फरमाया हजाम को बुलाओ ना ज़रा, इनके बाल तराशे, कितनी बड़े हो गए, हजामत होने वाली। हुजूर प्यार कर रहे थे, आंखों में आंसू थे, तो जनाब अस्मा करीब आई, कहने लगे हुजूर मेरे शौहर की कोई खबर आ गई है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गर्दन मुबारक उठाई तो आंखों में आंसू थे। फरमाया रब ने मेरे भाई को शहादत का दर्जा अता किया। फरमाया कोई आहो बका ना करना मेरे भाई पर, अल्लाह ने उसे शहादत का दर्जा दिया है। हज़रत जाफ़र तैयार के घर वालों के लिए हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया कि ये गम में हैं, इनके लिए खाने पका के लाओ। फिर नबी पाक उन बच्चों से प्यार करने लगे, फरमाने लगे ये जो है ना मोहम्मद बिन जाफ़र, ये अपने दादा जनाब अबू तालब से मिलता जुलता है, और ये जो अब्दुल्ला बिन जाफ़र है ये तो सारा मेरे साथ मिलता जुलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करते, बातें करते। हज़रत अस्मा रोने लगी। ये अबू दाऊद शरीफ में मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में चमकते जुमले। अर्ज़ करने लगी हुजूर मेरे बच्चों का क्या बनेगा, कौन किफ़ालत करेगा, कुर्बान जाएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या जुमले, यतीमों के लिए हुजूर का नवाजने का क्या अंदाज है। फरमाया अस्मा तू फिक्र न कर, अना वलीयुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया मैं दुनिया में भी इनका वारिस बनूंगा, क़यामत के दिन भी इनका वारिस बनूंगा। तू सिर्फ दुनिया की बात करती है कि निज़ाम मईशत का कैसे चलेगा, और मेरा वादा यह है कि दुनिया में भी इनकी सरपरस्ती करूंगा, आखिरत में भी सरपरस्ती करूंगा, आखिरत में भी मैं इनका ख्याल रखूंगा। आप गौर तो फरमाएं, तवज्जो तो करें कि इस कदर ज़्यादा हुजूर का इन्हिमाक इस तबके के साथ हमें अपने दाएं बाएं अजीज़ों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, इलाका में, पड़ोसियों में, मोहल्लेदारों में देखना चाहिए। ये बच्चे बेचारे मैंने देखा है, इनके बिगड़ने में असल बात ये होती है कि कोई मुखलिस होकर सरपरस्त नहीं बनता। आगे बढ़ें, अपनी अपनी खिदमात पेश करें, और जिस तरह हमारा बच्चा बिगड़ जाए तो हम उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, हालात वाक़यात पस मंज़र पेश मंज़र का जायज़ा लेते हैं, कौन से असबाब इख्तियार किए जाएँ तो ये ठीक हो सकता है। वो सारी चीज़ें इनके लिए भी हमें इख्तियार करनी चाहिए। और ये बच्चे अगर एहसास ज़िम्मेदारी पकड़ जाएँ, जो वारिस से महरूम हो जाते हैं, ये अगर एहसास ज़िम्मेदारी पकड़ जाएँ तो फिर ये कौमों की क़यादत करते हैं, फिर ये बहुत बड़े जांबाज साबित होते हैं। फिर ये अपने घर घराने का नहीं, ये मिल्लतों के, कौमों के लिए मिशअल राह बनते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम इनके लिए अपने दिलों को कुशादा करें, सीनों को वसी करें। अल्लाह करीम समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।